پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ ایک ہی اللہ کے فرما بردار تھے اور شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، اور ان کے سب سے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو انہی کی طرح صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اور اب آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کچھ بہت اہم سوال پوچھتے ہیں کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو پہچانتے ہو، سچائی کو جانتے ہو، تو پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور جب تم حق کو جانتے ہو تو اسے جھوٹ کے ساتھ ملا کر لوگوں سے چھپانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایک پلاننگ کو بھی لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جو صبح کے وقت ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیتے تھے اور شام کے وقت اس کا انکار کر دیتے تھے تاکہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں بھی شک پیدا ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا فرما رہے ہیں اور ہمیں ان آیتوں سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الفہم النبیین وحفظ المرسلین والمقربین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 70 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 70۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو۔ تکفرون کاف فا را اس کا روٹ ہے۔ تم کفر کرتے ہو، کیوں تم چھپاتے ہو، کیوں تم انکار کرتے ہو، کیوں تم جھٹلاتے ہو، کیوں تم ناشکری کرتے ہو۔ یہ سارے معنی بنتے ہیں تکفرون۔ لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وانتم حالانکہ تم تشہدون تم گواہ ہو، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اور خاص طور پر یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی آمد کی جو نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ جب قرآن میں کسی ایک گروپ کو ایڈریس کیا جاتا ہے، جب کسی ایک فرقے سے یا کسی ایک طرح کے لوگوں سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو پڑھنے والے کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ صرف انہی سے بات ہو رہی ہے، یہ انہی کے بارے میں اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصل میں جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، خاص طور پر کہ ہم مسلمان، ہر آیت میں ہمارے لیے لیسنز ہیں، ہمیں اس میں سے لیسنز اپنے لیے سیکھنے ہیں کہ ہمیں کیا یہ آیت سکھا رہی ہے، تاکہ ہم سے وہ غلطیاں نہ ہو جو یہود اور نصارہ سے ہوئی۔ یہاں کہا گیا یا اہل الکتاب، اکثر ہم کہتے ہیں یا اہل الکتاب یعنی کہ تورات اور انجیل کے علماء طبقے کے لوگ جو بہت ڈیٹیل میں علم رکھتے ہیں تورات اور انجیل کا، ان سے بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب، تم کتاب والے ہو، تم کتاب کے اہل ہو۔ کیونکہ قرآن مجید میں جب عام لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، عام یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، جن کو کتاب دی گئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اہل الکتاب کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، جنہیں ہدایت بھی دی گئی، جن کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی گئی، ذمہ دار لوگ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب کے پڑھنے والوں، اے کتاب کے علم رکھنے والوں، کتاب کی باتیں کرنے والوں، کتاب سے منسوب ہونے والے لوگوں، تم کیوں کتاب کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ یہ لوگ کن باتوں کو چھپاتے تھے، کن باتوں کا انکار کرتے تھے، کن باتوں کو جھٹلاتے تھے، کن باتوں کا یہ کفر کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ریلیٹڈ جو باتیں ان کی کتابوں میں تھی اور جو اس بات کا پروف تھی کہ یہ سچے رسول ہیں، اس بات کو لوگوں سے چھپاتے تھے تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کر لیں، تاکہ ان کا عہدہ، ان کا سٹیٹس ان سے نہ چھن جائے۔ کیونکہ اگر وہ خود اس بات کو مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے درجے، ان کے سٹیٹس بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے آ جائیں گے، یعنی وہ ان کے فالوور بن جائیں گے۔ تو لوگ جو ان سے رائے لینے آیا کرتے تھے، جو ان کو بڑا مانتے، جو ان کو اپنا رہنما مانتے تھے، ریلیجس لیڈر مانتے تھے، وہ اب ان کے پاس کیوں آئیں گے؟ وہ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، کیونکہ اسلام کی سچائی قبول کرنے کے بعد انہیں اپنے درجے، اپنی لیڈرشپ کو چھوڑ کر خود فالوور بننا ہوگا، اپنی علم کی
स्टेटस को छोड़कर, यानी टीचर के स्टेटस को छोड़कर, रहनुमा के स्टेटस को छोड़कर खुद एक फॉलोअर बनना होगा, खुद एक स्टूडेंट बनना होगा इल्म का। तो ये क्या करते थे, ये अपने खुतबों में, ये अपने दर्स में, टीचिंग सेशंस में अपनी किताब की उन आयतों को छुपा लिया करते थे या उसका इनकार कर दिया करते थे, उन बातों का जिक्र नहीं किया करते थे। और एक और बात ये है कि जब ये कुरान की आयतें सुनते थे तो इन्हें इस बात का एहसास हो जाता था कि ये बातें, ये सच्चाई तो हमारी किताबों में भी मौजूद है, यानी कुरान की सच्चाई इनकी किताबों से भी साबित होती थी। सुनते ही इन्हें ये एहसास हो जाता था कि हाँ, ये बातें तो वही है जो हमारी किताबों में भी मौजूद है। इसके बावजूद वो उन आयतों का इनकार कर दिया करते थे। लेकिन आप यहाँ पर एक और बात पर गौर करें, यहाँ पर ये कहा है या अहलल किताब, यहाँ पर या अहलल तौरात या अहलल इंजील नहीं कहा। सिर्फ तौरात या इंजील की तरफ इशारा नहीं है, यहाँ अहलल किताब से कुरान की तरफ भी इशारा है। ए कुरान वाले लोग, क्यों तुम आयतों का इनकार कर देते हो जबकि तुम गवाह हो, तुम जानते हो। जिस तरह से ये लोग अपनी किताबों का इनकार नहीं करते थे, किताबों को मानते थे, तौरात को मानते थे कि अल्लाह की किताब है, इंजील को मानते थे कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तरफ से आई है, इसमें हमारे लिए रहनुमाई है, लेकिन उसकी आयतों का इनकार करते थे, यानी उसकी सच्चाई को कबूल नहीं करते थे, उस पर अमल नहीं करते थे। उसी तरह से आज कुरान के मानने वालों का भी यही हाल है। हम ये मानते हैं कि अल्लाह की किताब है, हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको हिफ्ज़ करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसको ऊंचे ऊंचे तक ताकों में रखते हैं, लेकिन जब बात आती है उस पर अमल करने की, तब हम उसका इनकार कर देते हैं। अपनी जिंदगी में उसको अमल में नहीं लाते, करते वही हैं जो हमारे दिल की ख्वाहिश होती है। तो ये भी अल्लाह की आयतों का इनकार करना है। यहूदियों के पास तौरात के अलावा तलमूद भी है। तौरात वो किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, और तलमूद वो किताब है जिसके अंदर उनके रैबाइस के, उनके उलमा की शरई फिकी बहस और उनके फतवे वगैरह मौजूद है। अब कभी कभी क्या होता है कि अमल के मामले में इन दोनों बातों में फर्क है, यानी तौरात कुछ और कहती है और तलमूद उसका तकरार कर रही होती है, कुछ उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि जो तलमूद में लिखा है उसे मान लो, उसे ज्यादा पावरफुल समझते हैं। वो समझते हैं कि ये अल्लाह के कलाम के बराबर है, यानी उलमा की किताब या उलमा की बात या उलमा की तफसीर या रिवायत इतनी पावरफुल हो गई है कि असल किताब दर्जे में उससे नीचे चली गई है। आप देखिए, हमारे लिए भी इसमें एक सबक है। हमारे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो उलमा हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद रहीमहुमुल्लाह, और इनके अलावा भी जो बड़े बड़े उलमा हैं वो काबिल एहतराम हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं उनकी। लेकिन आप समझें कि सबसे ऊंची अथॉरिटी जो है वो अल्लाह की किताब की है, कुरान की है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर गलती का इम्कान होता है, वो गलती कर सकता है। बड़े से बड़ा आलिम भी, बड़े से बड़ा स्कॉलर भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलती कर सकता है। और इसीलिए ये सारे उलमा खुद भी ये कहते थे कि अगर कोई सही दलील आ जाए, कोई बात, दूसरी बात जो सही हो, उसके ऊपर सबूत मौजूद हो, कोई कोई सही दलील मिल जाए, तो मेरी बात को छोड़ दो। लेकिन मसला कब पैदा होता है? मसला तब पैदा होता है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी किताबों को पढ़ रहे हैं, जो लोग डीपली स्टडी कर रहे होते हैं और वो किसी एक मसलक से अपने आप को जोड़ चुके होते हैं, वो समझते हैं कि बस ये ही जो फिरका है या ये ही जो तरीका है ये सही है। अब उनके सामने अगर कोई ये कहे कि चाहे कुरान में ये लिखा है या सुन्नत में ये दलील मौजूद है, उनके सामने लेकर आए। लेकिन अगर वो शख्स ये कहता है कि मैं अपनी राय कभी नहीं बदलूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस मसलक की किताब में से जो कुछ लिखा है उसी को फॉलो करूंगा, तो ये रवैया गलत है। क्योंकि कुरान सबसे ऊपर है, कुरान का मकाम सबसे ऊपर है। तो किसी भी आलिम का इल्म या उसकी लिखी हुई किताब अल्लाह के कलाम से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात से ऊंची नहीं हो सकती, उसको उतना ऊंचा दर्जा नहीं दिया जा सकता। देखिए, आम लोग तो आलिमों को फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि वो इतनी गहराई से दीन को नहीं पढ़ते। उनके लिए तो यही है कि जो उन्हें बताया जाता है, जितना वो मैक्सिमम उसको फॉलो करते हैं, वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन आम लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो कुरान से किसी न किसी तरह जुड़े रहें, कुरान से इल्म हासिल करते रहें, थोड़ा बहुत जितना भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में,
ताकि कोई उन्हें बेवकूफ़ ना बना सके, कोई उन्हें गुमराह ना कर सके। तो होना क्या चाहिए कि अगर कोई आलिम या कोई तालिबे इल्म या कोई इमाम या कोई भी शख्स जब उसके साथ दीन के मामले में कोई इख्तिलाफ हो जाए, तो कुरान या सही दलील अगर ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए, तो अपनी राय को छोड़ दें। अपने आलिम की राय को, अपने बुज़ुर्ग की राय को छोड़ दें। जब दिल यकीन कर ले कि ये बात जो मुझे अब पता चली है वो ज़्यादा सही है, तो अपनी पिछली बात को भूल जाए, छोड़ दे, उसके ऊपर ज़िद ना करे, अड़ ना जाए। देखिए, कुरान को खुद कुरान में नूर कहा है, और नूर वो चीज़ नहीं जिसे सिर्फ देखा जाए। नूर वो होता है जिसकी रोशनी में बाकी सब कुछ देखा जाता है। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम इस आलिम की किताब को पढ़ते हैं, हम उसका लेक्चर सुनते हैं, हम उस दर्स को सुन लेते हैं, हम किसी मौलाना की बात को सुनते हैं, हम किसी इमाम की बात को सुनते हैं, और हमारे दिमाग में वो सारी बातें बैठी हुई होती है। और जब कुरान हम पढ़ने बैठते हैं और जब कुरान की आयतें उससे उनमें से किसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती है या उसको दरगुजर कर देते हैं, हम कहते हैं कि छोड़ो, हमने तो यही पढ़ा है और हम तो इसी को मानेंगे। होता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे दिमागों में वो इमेज सेट होती है, जिस चीज़ को हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, जिसको हमने पहले पढ़ा है, जिस किताब को हमने पहले पढ़ा है, उसकी रोशनी में हम दूसरी किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुरान को भी हम उसी तरह से लेते हैं कि अच्छा, मैंने ये पहले से पढ़ा हुआ और अब इसी रोशनी में मैं कुरान को देखूं। लेकिन असल में कुरान खुद नूर है। कुरान की रोशनी में दूसरी किताबों को पढ़ना है और सीखना है और समझना है, और अगर कुरान की रोशनी के अगेंस्ट वो कुछ जाता है तो उसे रिजेक्ट करना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप खुली आंखों से चीज़ों को देख रहे हैं तो उनकी ओरिजिनल फॉर्म में वो आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर आप एक कलर्ड लेंस का चश्मा लगा लेते हैं, मान लीजिए ग्रीन कलर का एक चश्मा लगा लेते हैं या लाल कलर का लगा लेते हैं, अब आपको हर चीज़ हरी या लाल नज़र आएगी। यानी पहले से आपने एक माइंडसेट बना रखा है और उसको बदलना नहीं है, और अब जो भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको उसी नज़रिए से देखना है। अगर वो उसमें सेट नहीं हो पा रही तो उसे रिजेक्ट कर देना है। ये होता है जब हम दुनिया की हर सोर्स से दीन का इल्म लेने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी आलिम को सुनते हैं, जब हम किसी शेख को सुनते हैं, जब हम किसी मौलाना को सुनते हैं, जब हम किसी की लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं और एक माइंडसेट बना लेते हैं अपना। हमें लगता है कि ये ही सही है, ये ही सही तरीका है सोचने का। और फिर जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में भी वही बातें ढूंढते हैं और उसका वही इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से उसके अंदर से माने निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स दीन से रिलेटेड इल्म की किताब पढ़ रहे होते हैं, गौर से पढ़ रहे होते हैं, हर बात को ध्यान से पढ़ते हैं, हर एक बात जो उस ऑथर ने लिखी है उसको पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ उसने कुरान की आयत कोट की होती है, जहाँ उसने उसकी दलील में कुरान की आयत कोट की होती है, उसको स्किप कर देते हैं। हाँ ठीक है, चलो कुरान की आयत कोट की हुई है, चलो आगे चलते हैं। उसको नज़रअंदाज कर देते हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। ये बात बहुत लंबी हो गई है लेकिन बहुत ज़रूरी है समझना, इसलिए मैं आपको दोबारा से इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पर एक वॉर चल रही है, दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। अब अलग अलग लोग अपने अपने नज़रिए से उसे देखते हैं। एक फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है, वो उस वॉर को देखेगा और उसकी वजह बताएगा कि इसकी वजह पैसा है। वो समझाएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे कहाँ जा रहा है और किस मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है और किसका क्या नुकसान हो रहा है। वो फाइनेंस के टर्म्स में उसको समझाएगा। दूसरा एक शख्स है जो जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट है। वो सियासी नज़र से उस वॉर को देख रहा है और उसकी स्ट्रैटेजी और एंगल्स को उस तरह से समझ रहा है और लोगों को समझा रहा है। उसी तरह से एक रिलीजियस स्कॉलर है, वो उस वॉर को मजहबी पहलू से देखेगा और सोचेगा कि अच्छा, ये वॉर इस वजह से हो रही है कि ये दो मजहब के अलग अलग लोग हैं, ये एथनिसिटी का मसला है। तो हर शख्स अपने इल्म की मुताबिक अपनी फील्ड के हिसाब से उस वॉर को समझ रहा है और समझा रहा है लोगों को। अब हो सकता है कि उसकी कुछ बातें सही हो सकता है कि ज्यादातर बातें सही हो सकता है कि कुछ भी सही ना हो, सिर्फ उसका नजरिया हो। ये भी हो सकता है कि सबकी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई हो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और सच्चाई हो, उसके अंदर कुछ और बातें हो जो किसी ने ना बताई हो, किसी को समझ ना आई हो। बिल्कुल उसी तरह से कुरान को समझने का मामला भी है। हर इंसान अपने माहौल, अपनी तालीम, अपने फिरके, अपने सोच के मुताबिक कुरान के पास आता है। इसलिए कई बार वो कुरान को अपने नज़रिए से समझने की कोशिश करता है और अपने नज़रिए से लोगों को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें
किसी शख्स की, किसी फिरकी की, किसी स्कूल ऑफ थॉट्स के नजरिए से कुरान को नहीं समझना है। किसी फिरके को, किसी स्कूल ऑफ थॉट को कुरान समझने का स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाहिए। स्टैंडर्ड कुरान होना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी है कि कुरान के नजरिए में हम दूसरी चीजों को समझें। अपनी पहले से बनी हुई सोच को कुरान पर न डालें, बल्कि कुरान को सोचने का जरिया बनाएं। कुरान के एंगल से सोचें, कुरान को स्टैंडर्ड बनाएं, कुरान के नजरिए से चीजों को देखें। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला यहूद और नसारा से खिताब करते हैं, उनके उलमा तबके के लोगों से खिताब करते हैं, कहते हैं क्यों तुम कुफ्र करते हो, क्यों तुम इनकार करते हो, क्यों तुम छुपाते हो आयतों को जो तुम्हारी अपनी किताबों में मौजूद है। दूसरा माना ये बनता है कि क्यों तुम इनकार करते हो कुरान की आयतों का। और तीसरा माना ये बनता है कि खुद हमसे कहा जा रहा है मुसलमानों से कि क्यों तुम कुरान की अहकामात को दरगुजर करते हो, क्यों तुम उनको लाइटली लेते हो, क्यों तुम अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते हो, क्यों तुम इनकार करते हो कुरान की आयतों का, क्यों उसकी नाशुक्री करते हो। वअन्तुम तशहदून, हालांकि तुम गवाह हो, हालांकि तुम जानते हो, हालांकि तुम्हारा दिल गवाही देता है कि ये सच्ची बात है। और ये जो लफ्ज है लिमा, क्यों, क्यों तुम ऐसा करते हो, ये सवाल पूछने के लिए नहीं आया है, बल्कि डांट पिला रहे हैं अल्लाह ताला कि क्यों तुम ऐसा करते हो। जैसे हम कभी किसी बच्चे को डांटते हैं और कहते हैं कि क्यों तुम इतनी देर से घर आए हो। अब उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। और लिमा तकफुरुना से एक और माना ये बनता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू, क्यों तुमने ऐसा किया। यानी तुम जानते थे, तुम्हें इल्म है, तुम गवाह हो, और उसके बावजूद तुमने ऐसा किया। ये हैरानी की बात भी है और एक और अफसोस भी जताया जा रहा है कि जानने के बावजूद तुम क्यों ऐसा करते हो। यहूद और नसारा के उलमा ऐसा क्यों करते थे, उसकी बहुत सारी वजह तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक वजह यह भी थी कि वो समझते थे कि हम आलिम हैं, हम पढ़े लिखे हैं, और हम किसी अनपढ़ से, उम्मी से दीन कैसे सीख सकते हैं। और यही बात, यही हाल आज अहले कुरान का है। अहले कुरान कहते हैं कि हम 20 साल से 30 साल से दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, इस बुजुर्ग उलमा से हम सीख रहे हैं, और आज बात हमें कुछ और पता चली तो क्या हम मान लेंगे। इतने साल की जो हमारी तालीम है और इतने सालों से जो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम अपनी बात से मुकर जाएंगे, अगर हम कहेंगे कि नहीं हम जो अब तक बता रहे थे वो गलत था और अब ये सही बात मुझे पता चली है, तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। और एक और वजह ये होती है कि लोग जो बातें सुन रहे होते हैं उससे कंफर्ट में आ गए होते हैं, उन्हें हमेशा से सुना होता है और हमेशा से वो सुनते आ रहे होते हैं, और अब जब कोई नई बात उन्हें बताई जाए, कहा जाए कि नहीं पुरानी जो बात थी वो गलत थी और अब सही बात ये है, उसको लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते। लोग सुनना नहीं चाहते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आना चाहते, वो इतने सालों से जो चीज़ें फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसको बदलना नहीं चाहते। तो आलिम दिल में क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं तो मान लेता हूँ लेकिन मेरी कौम नहीं मानेगी। मैं जिन लोगों को पढ़ाता हूँ, जिनको बताता हूँ, वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरा मकाम ख़त्म हो जाएगा, मेरी कम्युनिटी मुझे रिजेक्ट कर देगी। तो असल बात ये है कि कभी कभी हक को कबूल ना करने की वजह सिर्फ दलील की कमी नहीं होती है, कभी वजह होती है कोई रिवायत जो बरसों से चली आ रही है, कभी अपना मकाम, कभी लोगों का डर, कभी अपना पुराना निज़ाम जो चला आ रहा है उसे छोड़ने में मुश्किल। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम हक को पहचान चुके हो तो फिर उसे कबूल करने से तुम्हें क्या रोक रहा है। आयत नंबर 71, या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तलबिसूना, क्यों तुम गड़बड़ करते हो, अल हक्का, हक को, बिल बातिली, बातिल के साथ। तलबिसूना का रूट है लाम बा सीन, लिबास भी इसी से है। खल्त मल्त करना, आपस में मिला देना, किसी चीज को कंफ्यूजिंग बना देना। इब्लीस का लफ्ज भी इसी रूट से है। इब्लीस क्या करता है, उसने भी हक और बातिल को गड़बड़ कर दिया, कंफ्यूज कर दिया लोगों को। अल हक, हक क्या होता है, हक का मानी होता है जो बिल्कुल वाज़ेह, साफ और ठीक बात हो। ये जो लफ्ज है हक, इसके बहुत से माने होते हैं, पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं। हक का एक मतलब होता है सच, ट्रूथ। एक और मतलब होता है हक का मकसद, पर्पस। और हक का एक मतलब होता है राइट, यानी वो उसका हकदार है, उसका राइट है ये जो हम कहते हैं। एक और होता है हक का मतलब हकीकत, रियलिटी। और हक का एक मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला पूछते हैं कि क्यों तुम हक को बातिल में मिला देते हो। लिमा तलबिसूना अल हक बिल बातिल,
सच को झूठ के साथ मिला देते हो, अल्लाह की बात के अंदर अपनी बात को, गलत बातों को मिलाकर लोगों को कंफ्यूज क्यों करते हो? तलबिसूना, क्यों कंफ्यूज करते हो? क्यों तुम हक के अंदर, सच के अंदर झूठ को मिलाते हो? दूसरा, हक का मतलब होता है मकसद। तुम क्यों, जो इसका असल मकसद है, ये हिदायत के लिए आया है, ये रहनुमाई के लिए आया है, क्यों इसके मकसद को ख़त्म करते हो? ये तुम्हें अल्लाह से जोड़ने के लिए आया है, ये तुम्हारी ज़िंदगी को सही तरीके से जीना सिखाने के लिए ये कलाम आया है तुम्हारे पास। क्यों तुम इसके मकसद को ख़त्म करते हो? क्यों तुम दीन के असल मकसद को बातिल या बेमकसदी के साथ मिलाकर उसे रद्द कर रहे हो? इसको एक मिसाल से समझते हैं। नमाज अल्लाह ने क्यों हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है? 5 वक़्त की नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है, अल्लाह की याद दिलाती है। नमाज को ठीक तरह से पढ़ना ज़रूरी है, पूरे अरकान के साथ। लेकिन अगर हमारा मकसद ये हो जाए कि नमाज को पढ़ते वक़्त हाथ कहाँ होना चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए, सजदा कैसे करना है, कोनी कितनी बाहर निकालनी है, अगर हमारा पूरा फ़ोकस उसके ऊपर हो और जो नमाज का असल मकसद है कि वो हमें अल्लाह से जोड़े, ताकि हम जो पढ़ रहे हों, जो हम नमाज में दुआ कर रहे हों, जो हम सूरह पढ़ रहे हों, वो सब उसके मानी हमें पता हो और हम समझ कर उससे पढ़ें और अल्लाह से जुड़ें। उस मकसद को तो पीछे रख दिया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, इसने सजदा कितना लंबा किया, इसने रुकू कैसा किया, तो ये असल मकसद नहीं है नमाज का। सूरह निसा आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमूना मा तक़ूलून, कि ए ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में होते हो तो नमाज के करीब न जाओ जब तक कि तुम्हें समझ ना आ जाए कि तुम क्या कह रहे हो। ये शराब पीने वालों के लिए आई थी ये आयत, लेकिन आप सोचें कि हम नशे की हालत में नहीं होते, हम होश में होते हैं, लेकिन जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या कह रहे हैं। हमें नमाज में सूरह के मानी नहीं पता होते हैं। देखिए, अगर हमारे साथ ऐसा है कि हम नमाज के मानी नहीं समझते हैं और नमाज में अल्लाह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो दिल छोटा ना करें, आज शुरू करें, अभी से शुरू करें। थोड़ा-थोड़ा मानी याद करें, सूरह फातिहा का कम से कम 1-2 सूरह, जो छोटी सूरह है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, कम से कम उनके मानी आप याद करें मुँह ज़बानी। रुकू सुजूद की दुआएँ हैं, जो 2 सजदे के बीच में बैठने की दुआ है, इनके इतने खूबसूरत मानी हैं कि जब आप इनको याद कर लेंगे तो आप नमाज में कनेक्शन हो जाएगा, आप अल्लाह से जुड़ जाएंगे और आप सही से नमाज पढ़ने लगेंगे। खैर, यहाँ पर इस बात का मकसद ये था कि हमारी तरफ कुरान नाजिल किया गया एक मकसद के साथ, हमें नमाज का हुक्म दिया गया एक मकसद के लिए, हमें रोज़े का हुक्म दिया गया एक मकसद था उसके पीछे। हमने उन मकसदों को पीछे छोड़ दिया, जो असल मकसद थे उनको हमने पीछे छोड़ दिया और दूसरी चीज़ों को उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। रोज़े का मकसद है कि इंसान में तकवा पैदा हो, लेकिन हमारी तवज्जो होती है खाने की तरफ, इफ्तार पार्टीज़ की तरफ, सहरी की तरफ। कुरान का मकसद था कि उससे हम रहनुमाई हासिल करें, उससे हम हिदायत हासिल करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, लेकिन कुरान को हमने सिर्फ तिलावत तक महदूद कर दिया। हम सिर्फ उसे पढ़ते हैं बिना समझे, गलत सलत कैसे भी। देखिए, ये सब कुछ सुनकर दिल ना छोटा करें, मायूस ना हो। मैं आप लोगों को दुखी करने के लिए बात नहीं कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा-थोड़ा कोशिश करें, अब शुरू करें। अल्लाह बहुत रहमत वाला है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह हमारी पिछली गुज़री ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन अब हम थोड़ा-थोड़ा कोशिश करें, कुरान को समझने की कोशिश करें। कुछ लेक्चर्स सुनें, कुछ समझें कि कुरान हमसे क्या चाहता है, इस्लाम हमसे क्या चाहता है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है। और हक़ का तीसरा माना होता है हुकूक। हक़ यानी राइट्स। तुम लोगों के हुकूक, उनके हक़, उनके राइट्स को झूठ से बदल कर क्यों छुपाते हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है कि वो आखिरी नबी हैं, रिसालत उनका हक़ है। उनको उनका हक़ क्यों नहीं देते? गरीबों को, मिस्कीनों को, औरतों को, बच्चों को क्यों उनके हक़ से महरूम करते हो? क्यों उनके हुकूक छुपाते हो? हक़ का चौथा माना है रियलिटी, हकीकत। अल्लाह की हकीकत को, अल्लाह की पहचान को गलत बातों के साथ क्यों छुपाते हो? क्यों अल्लाह के साथ दूसरे इलाहों को शरीक ठहराते हो? क्यों अपने उलमा की बातों को अल्लाह की बातों के ऊपर तरजीह देते हो? और इस आयत में आगे फरमाया वतक्तुमूना, और क्यों तुम छुपाते हो अल हक़, हक़ को, व अंतुम, हालांकि तुम तालमून, तुम जानते हो। देखिए, हक़ को छुपाने से क्या मतलब है? एक माना तो ये है कि जो हमने पीछे पढ़ा
کہ حق کے اندر باطل کو ملا کر لوگوں کو کنفیوز کر دینا، اس سے بھی حق چھپ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اچھا کھانا ہو، اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا جائے تو پورا کھانا زہریلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر سچی بات ہے، اس میں تھوڑا سا بھی جھوٹ ملا دیا جائے تو پوری تصویر خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور مثال سے ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں لیکن سچ کو پورا بیان نہیں کرتے ہیں، جب آپ سچ کو پورا بیان نہیں کرتے ہیں تو آدھا سچ بتا کر بھی آپ سچائی کو پوری طرح سے بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اگر روتا ہوا آتا ہے اور ٹیچر سے کہتا ہے ٹیچر زید نے مجھے مارا، اس نے مجھے مکہ مارا، لیکن اس نے پوری بات نہیں بتائی، اس نے یہ نہیں بتایا کہ پہلے میں نے اور زید کو دھکا دیا تھا۔ تو آدھا سچ کبھی کبھی جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ سچ تو بولا گیا ہے لیکن اصل مقصد دوسرے کو گمراہ کرنا تھا۔ تو اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ اپنی کتاب میں سے صرف وہ باتیں بتاتے تھے جو ان کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہو یا جو ان کا پوائنٹ پروو کرتی ہو، اور جن باتوں سے انہیں ڈر ہوتا تھا، خطرہ ہوتا تھا، ان باتوں کو لوگوں سے چھپا لیتے تھے، وہ آیتیں بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ڈانٹ کر پوچھ رہے ہیں کہ کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو، اس کے باوجود کہ تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے، تمہیں علم ہے، تم علم والے لوگ ہو، تم پڑھے لکھے لوگ ہو۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے کلام کا علم عطا کر، اس کے ساتھ وفاداری، اس کے ساتھ ایمانداری، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ تو ہمیں ان غلطیوں سے بچا جو ہم سے پہلے لوگوں نے کی ہے، ہماری گزری زندگی کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی کتاب کا ایسا علم دے جو ہمارے دلوں کو نرم رکھے، ہمیں سخت نہ ہونے دے۔ یا اللہ تو ہمیں نماز کے معنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کر تاکہ ہم نماز میں تجھ سے جڑ سکیں، تجھ سے دعائیں کر سکیں۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، آمین یا رب۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.